So a score of 243, and that too in the first attempt. It's my pleasure to introduce all of you to our champion, Dr. Karthik Sharma. Karthik, first of all, many congratulations. थैंक यू सो मच सर। Karthik, इतनी उम्मीद थी? Did you imagine that you would be getting a score plus 240 plus score in that too in the first attempt? सर जब मैं जीटीज दे रहा था तो मेरे 230 235 आ रहे थे। हाँ। और हम्म। जब मैं एग्जाम दे के आया तो मैं और मेरे फादर एस्टिमेट लगा रहे थे कि हाँ तेरे आ जाएंगे 220 तक। अच्छा, तो मुझे फिर कार्तिक शर्मा याद आ रहा है, जीटी की जो लिस्ट आती है टॉप वाले में कार्तिक कार्तिक हमेशा टॉप 3 4 में रहता था। हाँ जी सर। Wonderful, yeah, wonderful. So nice to see those numbers and that too in the first attempt. बहुत बढ़िया कार्तिक. थैंक यू So सर। Karthik, अब now that you have cleared the FMG exam and that too with flying colors, अब now your role would be to guide your juniors. So let us understand how you prepared. So बताओ यस कैसे प्रिपरेशन, सबसे पहले कौन से कॉलेज से एमबीबीएस की है आपने, ये बताओ. सर एक्चुअली पहले मैं यूक्रेन में था। हम्म. 4th ईयर तक मैं यूक्रेन में था, फिर वॉर के कारण मैं हम्म. उज्बेकिस्तान में ट्रांसफर ले ली थी। ओके. फिर वहां पे ताशकंद मेडिकल एकेडमी में मैंने फाइनल ईयर कंप्लीट किया था, तो वहां से ग्रेजुएट था। Understood. So, Karthik, you were a student of Mission 200 program, and I think you followed everything, every single thing that was being done in Mission. यस सर। So, please explain us how did you start? I mean, initially, what was your plan of the for the preparation? Sir, actually, I was completely dependent on the schedule that the Cerebellum team given to us. Hmm. The schedule was very proper with Hmm. proper timing to each and every subject. So, sir, I completely blindly trust this app. So you just I followed don't. whatever was Yes, planned. sir. ठीक Yes, है. sir. So we started with the longer version of lectures that we call as mission lectures. So Yes, what sir. was your strategy? Because हम लोग इवनिंग में क्लासेस करते हैं. सो आप क्या करते थे इवनिंग में? क्लासेस सारी आपने अटेंड की, फिर मॉर्निंग में क्या करते थे, ये बताओ थोड़ा सा. सर एक्चुअली जैसे 4 o'clock से स्टार्ट होती थी, अराउंड 10 12 o'clock तक। हम्म. फिर आई यूज टू स्लीप ओके. after the class. Then I wake up and I just revise the content that our teachers teach us. ओके. And and that late night marathon लेट नाइट. MCQs. That's it. सो वॉट एवर वॉज taught in the evening hours, you would Yes, revise the same in the morning hours the next day. yes, sir. All right. And would you do the late night PYQ marathons every single day, or were there days when you would feel lazy कि चलो कल करके देखेंगे? No, sir. Actually, it was not that much MCQ, so no हम्म. point to be lazy. राइट. सो 40 50 ही 40 होते हैं तो आराम से हो जाते हैं. Yes, sir. ठीक है. So after every class we used to have the ENDs, the test and discussions. Yes, sir. आप वो सारे टेस्ट करते थे, डिस्कशंस फॉलो करते थे? Yes, sir. Sorry. सारे के सारे. ठीक है. तो कुछ बच्चे कार्तिक कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़ देते हैं, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि मेडिसिन जो है दैट वुड बी कवर्ड इन पैथो एंड फार्मा बिकॉज द टाइम क्रंच इज ऑलवेज देयर. सो वर यू एबल टू कंप्लीट ऑल द 19 सब्जेक्ट्स इन लाइव क्लासेस, और डिड यू आल्सो लीव सम ऑफ देम? No, sir. So there was no point of leaving any subject. हम्म. Actually, you gave us very good plan, so there was no point in leaving. Okay. So you're able to complete all the subjects and all the classes. Wow, Yes. wonderful. And then in the lab 2 of Mission 200 Plus, we started having the revisions, the revision ENDs. So Yes, yes. what was your strategy of revising? Because the course you had completed, so did you make notes while the first lab was going on? क्या किया था? एक्चुअली सर मैंने क्लास लगाता था मैं, फिर वही पढ़ता था। ऐप में आ जाते हैं ना नोट्स, हाँ वो पढ़ता था। बट मेनली जब वो एक सब्जेक्ट हो जाता था ना, फिर उसके बाद आई यूज्ड टू ओपन द BTR, हाँ. देन आई रिवाइज फ्रॉम दैट द मेन क्रक्स ऑफ द टॉपिक्स। आई रिवाइज फ्रॉम दैट। ओके. सो आपने Yes. इंटीग्रेट कर दिया था मिशन वाली क्लासेस को. तो जैसे मान लीजिए किसी ने मिशन क्लास कर ली, तो उसके बाद बीटीआर वाला जो कंटेंट था, क्या वो जल्दी से रिवाइज होता था, क्या होता था एग्जैक्टली? सर BTR वाला कंटेंट हो ही जाता था रिवाइज, क्योंकि जो पढ़ाया है वही कंसाइज ही तो किया है। ठीक है. तो फिर वो हो कवर जाता था जाता था. रिवाइज। हाँ ठीक जी है. सर। ठीक है. एंड उसके बाद जो मैराथन्स होते हैं कार्तिक क्लास में 7 डेज, क्या वो कर पाए थे आप, सर क्या किया था? मैराथन तो बेस्ट चीज है सेरिबेलम की, क्योंकि वो इतने कम दिनों में सब रिवाइज कैसे करोगे खुद से। तो वो आई गेस वो ही था एक मेरा पुश जो 243 तक मेरे मार्क्स लाया है.
सो मैराथन में जो लास्ट 7 days में entire course is completed and that too in live class, that helped you with the final revision. Yes, sir. That gave me a lot of boost in my score, sir. ठीक है. और what about the grand test, Karthik? What should be the strategy for grand test? Sir, actually my strategy was कि I gave the grand test on the last day. Okay. Because मेरे को वो रिवाइज जो मेरे गलत होते थे ना, वो मेरे को जल्दी जल्दी देखने. I can't wait 3 to 4 days. So I gave on the last day in the morning only according to the plan. Like हमारा एग्जाम सुबह होता है. So I used to wake up around 6, then prepare myself for the exam and that's it, sir. तो जैसे हम प्रॉपरली करते हैं कि पेपर 1 देन सम गैप, पेपर 2, you used to do it in the same way? Yes, sir. I used to give myself 1 hour in between the paper. That's it, sir. So, Karthik, many students when they start preparing, they are of the viewpoint that appearing for GTs in the beginning may not be a good idea because if I get a bad score, my confidence would go down. What was your strategy? Did you give GTs in the beginning और बाद में शुरू किए थे? सर मैंने तो साथ साथ ही दिए थे जीटी, क्योंकि मेरा माइंडसेट था कि जीटी बैड स्कोर से फर्क नहीं पड़ता. जीटी में इसलिए देता था कि पता लगे कि किस सब्जेक्ट में कैसा हूं मैं और उसको इम्प्रूव करूं ज्यादा. So basically using GTs not only as an assessment tool but Yes, अपने sir. आप को इम्प्रूव करने के लिए और Yes, sir. efforts. ठीक है. कार्तिक, आपने बोला कि आपने मिशन प्रोग्राम को थ्रू आउट फॉलो किया. सो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द मिशन 200 प्रोग्राम आफ्टर गेटिंग सच अ गुड स्कोर? Sir, I guess it's the best in the market. Actually, I also suggest my juniors. They text me now. They're asking me कहाँ से कर रहे हो, कहाँ से तैयारी की भैया. तो This is क्या the क्या best thing. क्या एडवाइस है कार्तिक अपने जूनियर्स के लिए जो अभी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में है? क्योंकि समटाइम्स एफएमजी स्टूडेंट्स आर वेरी स्केयर्ड कि द पास परसेंटेज इज नॉट सो हाई एंड हो पाएगा नहीं हो पाएगा. सो आई वांट टू डिफरेंट एडवाइसेस. वन फॉर द जूनियर ऑफ योर्स जो अभी कॉलेज में है, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में, एंड सेकेंड फॉर दोज कलीग्स ऑफ योर्स हु कुड नॉट क्लियर दिस एग्जाम इन दिस अटेम्प्ट. दोनों के लिए क्या आपकी सजेशंस हैं? सर मेरे जूनियर्स के लिए तो यही है कि सर ये एग्जाम इतना मुश्किल नहीं है. अगर तुम लगातार बैठे रहो, लगे रहो इस एग्जाम के पीछे. सर कंसिस्टेंसी इज द की फॉर दिस एग्जाम. राइट, आई थिंक सो. एंड फॉर माय कलीग सर अगर पढ़ा तो उतना ही है, उसको बार बार रिवाइज करना. नया चीज तो पूछते नहीं है ज्यादातर. तो उसको ही रिवाइज करते रहो, एमसीक्यू लगाते रहो. यही है सर. इस बात से याद आया मुझे पीवाईक्यूज पीवाईटीज का जो डिबेट है कार्तिक. समटाइम्स पीपल से कि अब नए क्वेश्चंस आते हैं, पुराने क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आते. ऑन द अदर हैंड वी टीचर्स बिलीव दैट पीवाईटीज वुड ऑलवेज रिमेन इंपॉर्टेंट बिकॉज वी हैव बीन सिंगिंग फॉर 12 years. नए नए टॉपिक कहाँ से बना देंगे वो लोग? सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस कि पीवाईक्यूज पीवाईटीज कितने इंपॉर्टेंट है? सर मैंने तो एमसीक्यू सिर्फ पीवाईटीज के ऊपर ही किए थे इस बार भी सॉल्व. तो पीवाईटीज ही आते हैं सर, नए तो कुछ आते ही नहीं है. कार्तिक घर पे हो अभी? यस सर. पेरेंट्स साथ में है? हाँ बुलाओ, बात करा दो. हाँ नमस्कार सर. नमस्कार सर, बहुत बहुत बधाई हो सर. नमस्ते जी, बहुत बधाई हो. आपके बेटे ने हम सबका भी नाम रोशन किया, आपका भी नाम रोशन किया है. और इतना इतना अच्छा स्कोर, 243 स्कोर बहुत कम लोगों का आता है. तो बहुत ही आपका बेटा बहुत अलग लेवल पे है. बहुत बहुत बधाई हो सर आपको. चिंता तो बहुत थी जब से इसमें लगा होता. लास्ट 6 मंथ से इसका जो प्रेपरेशन देख के मेरे को लग रहा था कि ये क्रैक 100% करेगा. परंतु फिर भी एफएमजी का नाम सुन के जो फॉरेन के पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स का एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद हमें लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए. बट इसने जब एग्जाम दिया तो उसके 2 पार्ट थे. फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा था 90 to 100 मेरा स्कोर आएगा. सेकंड में इसने बोला पापा अब मैं 120 प्लस कर गया. तो मेरे को बड़ी खुशी हुई उस बात को सुन के. बाकी आपके जो इंस्टीट्यूट है इसकी बड़ी तारीफ कर रहा था और कह रहा था बड़े अच्छे से इसने जो भी आपने टेस्ट लिए, ग्रैंड टेस्ट लिए और भी टेस्ट लिए, रैंक भी उसमें आते थे इसके. मैंने कहा बेटा ये जो है कॉन्फिडेंस के लिए बढ़िया, बट फाइनल जो 3 घंटे वो होंगे नहीं आपके, 5 घंटे 2.5 घंटे के, तो वो असली टेस्ट. सर बहुत सारे माँ बाप अभी बहुत परेशान रहते हैं बच्चों को लेके, जैसे आप बता रहे थे ना कि कैसे निकलेगा, क्या होगा. सर उनके लिए उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? मतलब आपके शब्दों से शायद उनको भी थोड़ा हौसला बढ़े अपने बच्चों के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बच्चों पे ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है जी.
कि अगर वो अकेले बैठ के पढ़ रहा है तो आप ये मत सोचिए कि वो अदर देन कुछ कर रहा होगा। तो उसको फ्री हैंड छोड़ दीजिए और बाकी आप रिजल्ट का वेट करिए। उसको किसी प्रकार के लिए उसको मोटिवेट करिए और उसको बूस्ट अप करते रहिए, पर उस पर कभी किसी प्रकार का कोई प्रेशर ना डालें। इससे रिजल्ट उसके प्लस। तो सर मैं सभी पेरेंट्स को ये बात कहना चाह रहा था कि जो बच्चे उन्होंने यूक्रेन और कंट्रीज में भेजे हैं, इनके बच्चे इंटेलिजेंट है। पहली बात तो ये है, इनके बच्चे ऐसा ना फील करें कि इनके बच्चे इंटेलिजेंट हैं। जी, हमारे देश में एक सिस्टम है, उसी में रहना पड़ता है। आके बच्चे एफएमजी जैसे कार्तिक ने क्वालिफाई किया उसको और अच्छे मार्जिन के साथ किया। पेरेंट्स से मैं उम्मीद करता हूँ आप इसी प्रकार का कॉन्फिडेंस बना के रखें।